Hello everyone, welcome to CMS Digital Classrooms. So today we are going to learn about the further exercise of or further topic of your chapter. Okay, so here we will learn now use of grouping symbols. Okay, so when we use the grouping symbols, okay, what are the grouping symbols that we will learn in this exercise, this chapter. This is very important. Why? Because as I told you earlier also that negative sign or minus sign matters a lot. Okay, so when we use the grouping symbols or how we use the grouping symbols, we will see in this video or in this lecture. Okay, so first when we have more operations, suppose some more operations are there. Okay, then we want to find the groupings or we want to solve that. At that case we use the groupings. Okay, so as like suppose we are taking more examples, some examples we will take. Some more algebraic expressions are there. Okay, and we want to separate them in groups. Okay, and those all operations are separated in groups, and we want to solve that. Okay, so when we use grouping symbol, जब भी कोई algebraic expressions रहता है और वो अलग से grouping बना के रहता है, अलग से group बना के रहता है, at that time first we will solve the groups one and then we will solve the rest of all. Then we will not start from the beginning or from the directly using the signs only. अगर वो अलग अलग ग्रुप बना के है तो उसको पहले अलग अलग ग्रुप को तोड़ेंगे हम लोग, अलग अलग ग्रुप को पहले सॉल्व करेंगे. आफ्टर दैट वी विल कंबाइन दोस ऑल आफ्टर रिड्यूसिंग और आफ्टर रिमूविंग दोस ऑल ग्रुपिंग्स. ओके, तो ग्रुपिंग्स नहीं हो रहा है, ग्रुपिंग्स जब भी रहता है उसको पहले ग्रुपिंग्स को हम लोग तोड़ते हैं और उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व करते हैं. तो ग्रुपिंग्स में हम लोग का तीन तरह का पहले हम लोग बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग्स इट मे बी. फर्स्ट दिस इज कॉल्ड first grouping will be there which is called parenthesis. This is the first bracket. Okay, and then next which we have is brackets, which is the second bracket, and third we have is brackets, which is the third bracket. Okay, so these are the three brackets which we will learn, first, second and third. So first we will reduce or we will solve inside of this bracket one, second we will solve this, and third we will solve this. Okay, so there are some cases which we will discuss here. First case, suppose the symbol is in positive. अगर पॉजिटिव में रहता है ब्रैकेट से पहले, इस ब्रैकेट से पहले या इस ब्रैकेट से पहले या इस ब्रैकेट से पहले, and whatever the sign or whatever the digits inside, whatever the variables inside, whatever values inside the bracket, that sign will not change in case of positive. प्लस के जगह टाइम पे मान लो यहाँ प्लस है और इसके अंदर में हम लोग का है यहाँ पे प्लस 6x² माइनस 3x प्लस 2 ये है, और यहाँ पे प्लस है, कोई यहाँ पे भी डिजिट है. तो यहाँ पे जो हम लोग नंबर लिखेंगे ये ब्रैकेट रिड्यूस और रिमूव करने के टाइम, तो हम लोग सेम साइन यूज करेंगे. यहाँ पे प्लस है, प्लस ही यूज करेंगे. हियर माइनस, माइनस वी विल यूज. हियर प्लस, वी विल यूज प्लस ओनली. बट इन केस ऑफ नेगेटिव, सपोज इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव हियर नेगेटिव नंबर इज देयर, माइनस अगर रहता है, the first case is that if positive sign is there, then will be no any changes in the terms. Okay, so these are the terms, so there is no any changes of the sign of the terms. यहाँ पे जो भी साइन रहता है वो सेम रहेगा, ठीक है. बट सपोज the sign is different. अगर यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव की जगह पे नेगेटिव रहता है, मान लो माइनस यहाँ पे है 4x² माइनस 7x प्लस 3. तो इस केस में क्या होगा? This is the second case. In this case, the sign of all the values, all the terms will be changed. So here it is positive, so it will be minus 4x². Here it is minus, so it will be plus 7x. Here it is plus, so this will be minus 3. So this is how the sign of all the terms will be changed when you reduce or when you remove this brackets. Okay. So this is the basic concept of this, and if it is of more than one breaks are there, suppose 3 breaks are there total, then first we will do or solve the inside of this first one, second one, and then third one. This is the serial order of solving.
So let's now learn with or let's understand with an example. That will be better. We will understood better with the examples. Okay. So let's see. For example, this is the question. First we have to reduce or we have to break this one and this one. Okay. So let's see how much it will be. This will become as it is. Here I am doing solutions. So 5x will be as it is 5x minus 4y minus this bracket will be as it is. So 7x. Now I am bringing this one. So here as this is minus. So the sign of these all terms will be changed. Okay. So 3z is here plus positive, so that will be minus 3z. Okay. This is minus 2y, so minus will be plus 2y. Then plus 4z is there. Okay. Then here minus. Here 3 is multiplied, so 3 you have to multiply with all the numbers. Okay. So 3 minus 3 is here, so this is plus x, so it become minus 3x. Okay, and then this is positive sign, it will change to negative, and 3 is there and 3 is there, so 3 are 9, so minus 9y. Okay, and this is minus, so this will change to plus, and this is 2 and this is 3, so 3 2 are 6, so here plus 6z. Okay. So now we will use these two breaks only because the first one we have already removed. So these are the two now left. Okay. Now we will remove these brackets. Okay. So let's remove this bracket now. So now the number will be left 5x. Okay, minus 4y. Here this is again minus sign. So sign of all the terms will be changed. Okay. So this is plus, this will be minus 7x. This is minus, this will be plus 3z. This is plus, this will be minus 2y. This is plus, this will be minus 4z. This is minus, this will be plus 3x. This is minus, this will be plus 9y. This is plus, this will be minus 6z. Okay. So then we will use this bracket. Okay. Now again here this is negative sign, minus sign. So again the sign of all the terms will be changed. So my 5x. Here this is plus, so minus 4y. This is minus, so this will be plus 7x. This is plus, so this will be minus 3z. This is minus, so this will be plus 2y. This is minus, this will be plus 4z. This is plus, this will be minus 3x. This is plus, this will be minus 9y. This is minus, this will be plus 6z. Okay. So instead of writing this much, you can directly add also. Add करते जा सकते हो. But this is the final equation which comes. So now you have to add the like terms and you have to separate the unlike terms. So let's see x. How much x is there? So 5x plus this is also plus 7x. So 7 plus 5 is how much? Let's check how many x are there. Here minus 3x. Okay, any else x is there? No. So just reduce minus 3x from 5x, so then it will be 2x. Okay. So 2x plus 7x is 9x. So that means plus 9x will be the left. Okay. So now let's move to the y. So 4y is here minus 4y plus 2y. So it will become minus 2y and minus 9y. So how much? Minus 11y, right? So minus 11y. Now let's move into z. So minus 3z here, minus 3z and plus 4z. So only 1z will be remainder. So plus 1z plus 6z. So plus 7z. So here it will be plus 7z. So this is how very easily you can do this type of question. Only you have to keep in mind that whenever negative sign is there, you have to change the sign of each terms inside the bracket. जब भी आप ब्रैकेट हटाते हो, आपका नेगेटिव साइन रहता है तो चेंज करना है, पॉजिटिव साइन रहता है तो कोई चेंज नहीं होगा. That will become as it is. So these all exercise is very easy.
Okay, all questions are very easy. I hope you can do the rest of all, but still let's discuss few more questions. So now we are going to discuss some question of exercise 8D. Okay, so if we talk about 8D, all the questions are related to the simplification only. Simplification means you have to just solve the all questions, and only what you have to taking care is just you have to taking care about the reducing the brackets को जो है हम लोग कैसे रिड्यूस करते हैं वो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे कि हम लोग अगर फर्स्ट क्वेश्चन का बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग का है फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग का है a माइनस बी माइनस 2a। तो हम लोग ने पढ़ा था कि अगर इस तरह का यहाँ पे माइनस साइन है, अगर हम लोग का यहाँ पे माइनस साइन है तो उसको उसके बाद अगर ब्रैकेट को ओपन करना चाहते हैं तो हम लोग का इनसाइड ब्रैकेट के अंदर जो भी साइन है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे यही चीज़ बताया गया है कि ये जो ब्रैकेट के अंदर जितने भी चीज़ है, पैरेंथेसिस के अंदर जितने भी चीज़ है, जितने भी डिजिट्स है, उसका साइन चेंज हो जाएगा। बी पॉजिटिव है, बी प्लस है तो बी माइनस हो जाएगा। माइनस 2a है मतलब 2a नेगेटिव में है, माइनस में है, तो यहाँ बाहर आके वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो क्यों होगा? क्योंकि हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा। तो a माइनस बी प्लस 2a हो जाएगा। ठीक है, तो 2a प्लस a यहाँ पे 3a हो जाएगा, तो 3a माइनस बी विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो इसी तरह से अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 इज़ 4x माइनस इनसाइड द ब्रैकेट 3y माइनस एक्स प्लस 2z। तो ये जो है इसमें भी सेम चीज़ हम लोग का नेगेटिव साइन है, तो ये नेगेटिव साइन के चलते हम लोग का अंदर का ब्रैकेट का अंदर में जो भी नंबर्स है उसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो 3y के साथ कोई भी साइन नहीं, मतलब पॉजिटिव प्लस साइन है तो प्लस साइन से वो चेंज हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ पे जब भी हम लोग ने लिखा है, देखो 4x माइनस 3y लिखा है, यहाँ पे माइनस एक्स था तो माइनस एक्स क्या हो गया, प्लस एक्स हो गया यहाँ पे। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे प्लस 2x था, प्लस 2x जो है माइनस 2x हो गया। ठीक है, तो इस तरह से साइन चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नॉर्मली एडिशन करेंगे। तो एडिशन करने के लिए सबसे पहले हम लोग साइन का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं, वो है यहाँ पे 4x। तो 4x और उसके बाद 4x के बाद हम लोग का क्या है, शी हेयर 4x एंड माइनस 3y प्लस एक्स माइनस 2z। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव x है, यहाँ पे 4x है। ठीक है, तो 4x प्लस एक्स हो गया 5x, तो यहाँ पे 5x हम लोग ने लिखा, और यहाँ पे माइनस 3y है तो माइनस 3y लिखा, और यहाँ पे माइनस 2z है तो माइनस 2z लिख दिया। तो दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह से जो है हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग उसी तरह से डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 का अगर बात करें, यहाँ पे भी सेम चीज़ है कि नेगेटिव साइन है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो क्योंकि नेगेटिव साइन है सो नेगेटिव साइन को हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। और नेगेटिव साइन को मतलब चेंज करेंगे मतलब ब्रैकेट से जब भी ब्रेक्स करेंगे तो नेगेटिव साइन जो होगा वो हम लोग का चेंज, जो भी साइड है इनसाइड द ब्रैकेट वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, पहले तो ये तो एज इट इज़ हम लोग लिख लेंगे जो भी है, तो यहाँ पे एज इट इज़ मैंने वो नंबर लिख लिया है। उसके बाद ब्रैकेट के बाद जो नंबर, यहाँ के बाद जो नंबर है यहाँ से, उसको हम लोग साइन चेंज करके लिखेंगे। तो ए स्क्वायर जो है नेगेटिव हो जाएगा, बी स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 2a है, माइनस 2a है तो यहाँ पे प्लस 2a हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करने के बाद अब इसको हम लोग यहाँ से ऐड करेंगे। ठीक है, अब रीअरेंज करके ऐड करेंगे। रीअरेंज कैसे करते हैं, ए स्क्वायर ऐड करेंगे। तो ए स्क्वायर में देखो यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर है, तो प्लस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 इज 0 हो जाएगा, तो 0 ए स्क्वायर हो जाएगा, और डायरेक्टली यू कैन से ये ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, ये भी कर सकते हो। तो ये रिड्यूस होकर 0 हो गया। अब बी स्क्वायर है, यहाँ भी माइनस, यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर है, माइनस बी स्क्वायर है, वो भी कैंसिल हो गया। ठीक है,
अब जो है यहाँ पे प्लस 2ab है और प्लस 2ab है, तो 2ab और 2ab सिर्फ हम लोग का ऐड होगा और 4ab हो जाएगा, बाकी सब जो है कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर और b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। मतलब कैंसिल होगा मतलब अगर हम लोग 1 माइनस 1 करते हैं तो क्या होता है, 0 होता है। तो इसी तरह से a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0 हो जाएगा और b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भी 0 हो जाएगा, बचेगा प्लस 2ab और प्लस 2ab। सो प्लस 2ab प्लस प्लस 2ab यहाँ पे प्लस 4ab हो जाएगा। तो इस तरह से प्लस 4ab विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, let's discuss next question, which is question number 4. Okay, so question number 4 we have is this one. ओके यहाँ पे -3 है, -3 यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाला बात है कि -3 इंटू है, यहाँ पे मल्टीप्लाई a इंटू बी है, मतलब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3 को a के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, 3 को b के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों के साथ हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, तो -3a -3b हो जाएगा वो। उसी तरह से यहाँ पे 4 को 2a के साथ भी करना है, 4 को 3b के साथ भी करना है, तो 4 2 आर 8a हो जाएगा और 4 3 आर 12b हो जाएगा। माइनस यहाँ पे तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई किया हुआ है, बट इसको ब्रैकेट से हटाने के लिए हम लोग को माइनस साइन है तो साइन चेंज करना पड़ेगा, -2a हो गया और यहाँ पे माइनस साइन है b का तो यहाँ पे प्लस b हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग का यहाँ पे फिर साइन यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये जो दो नंबर है मल्टीप्लिकेशन, तो 4 2 आर 8 हो गया और 2 3 आर 12 हो गया। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद अब हम लोग जो है अरेंज करेंगे और अरेंज करके जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे, लाइक टर्म्स को एक तरफ से अरेंज करके हम लोग ऐड करेंगे, तो हम लोग का जो आंसर निकलेगा वो 3a - 4ab हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 जो है हम लोग का इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है -4x² प्लस ये है। यहाँ पे देखो हम लोग को सबसे पहले जो स्मॉल ब्रैकेट है उसको हम लोग को ब्रेक करना है। ठीक है, तो स्मॉल ब्रैकेट्स मीन्स अंदर वाला जो है यहाँ पे आ जाएगा 2x² - 3 -4 माइनस है यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस से प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो +3 हो जाएगा, तो यही चीज़ यहाँ पे किया गया है, आप देख सकते हो। अब इसके बाद ये ब्रैकेट में प्लस है तो कोई भी चेंजेस नहीं होगा, जस्ट इसको ऑपरेशंस को आप जब चेंज करोगे तो यहाँ पे हम लोग का सिर्फ बचेगा 5x² - 7। कैसे, -4 और -3 अगर हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, -7 होगा, और 2x² और 3x² अगर ऐड करेंगे तो 5x² होगा। तो इस तरह से हम लोग का जो फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा, यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव साइन है तो कोई भी चेंजेस नहीं होगा अंदर का, तो एज इट इज़ हम लोग ने लिख लिया। अब उसके बाद जो फाइनल एक्सप्रेशन होगा हम लोग का वो x² - 7 बचेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे हम लोग का जो बचा हुआ है -4x² प्लस 5x², तो -4 और +5 को अगर ऐड करोगे तो सिर्फ 1 बचेगा, तो 1x² हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से x² - 7 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से बाकी जो भी क्वेश्चंस है हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ एक ही चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब भी माइनस साइन रहेगा आपका ब्रैकेट के अंदर, जैसे इसका 6 का बात करें तो ये यहाँ पे जो माइनस साइन है उसको जब आप ब्रेक करोगे तो वहाँ पे इनसाइड द ब्रैकेट जो भी नंबर है उसका साइंस, मतलब जो भी डिजिट्स है, जो भी ये है ऑपरेशन है, उसका सारा का साइन चेंज होगा। तो यहाँ पे साइन आपको चेंज करना बहुत मैंडेटरी है। और मल्टीप्लिकेशन के समय मल्टीप्लिकेशन ध्यान रखना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन के समय एडिशन सब्ट्रैक्शन। जैसे ये दोनों केसेस में ये 2 जो है ये मल्टीप्लाई होगा सारे नंबर्स के साथ जो भी ब्रैकेट के अंदर में डिजिट्स है। यहाँ पे 3 जो है ब्रैकेट्स के अंदर जितने भी डिजिट्स है सारे से मल्टीप्लाई होगा, x² के साथ भी, y² के साथ भी और xy के साथ भी। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करने के बाद, सारा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आप जो है उसको लिख सकते हो। या तो एट ए टाइम, यहाँ पे देखिए एट ए टाइम किया गया है, यहाँ पे एक ही साथ किया गया है, ये जो किया गया है यहाँ से इसमें जो लिखा गया है एक ही साथ किया गया है। तो 3x², यहाँ पे 3x² को -3x², क्योंकि यहाँ पे प्लस x² था तो यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस हो गया। तो इस तरह से साइन यहाँ पे डायरेक्टली चेंज कर दिया गया है। तो हम लोग भी इस तरह से कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से अदर ये स्टेप आप अगर नहीं भी करते हो तो चलेगा, डायरेक्टली ये स्टेप्स निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो ना, यहाँ पे -2x² है तो आपको देखना है, और 2x² कहाँ है, यहाँ पे 3x² है, तो -3x² और -2x² कितना हो जाएगा, -5x², वहीं ना यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 2y² है यहाँ पे प्लस में है, और
यहाँ पे -3y² माइनस में है, तो एक -y² ओनली बचेगा, क्योंकि +2y² और -3y², अगर इसको आप जोड़ोगे तो -y² बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का इसको बना सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद आप इसको अगर आगे सॉल्व करोगे तो हम लोग का जो है फाइनल आंसर ये आ जाएगा। xy में आप देखो -2xy एक है और यहाँ पे +3xy है, तो एक xy बचेगा, तो इस तरह से xy हम लोग का बचेगा। तो इस तरह से हम लोग जो भी क्वेश्चंस और भी है वो हम लोग सॉल्व करेंगे अपने से, आई होप। और किसी को भी कोई भी क्वेश्चंस में अगर सॉल्व करने में दिक्कत होता है तो आप हमें बताएं, आपको जो है समझाया जाएगा। जस्ट एक ही चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब भी ब्रैकेट तोड़ते हो, जैसे ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट हम लोग का ये तोड़ना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड ब्रैकेट तोड़ना है, उसके बाद थर्ड ब्रैकेट तोड़ना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे पहले इसको जो है नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव से साइन चेंज करके, यहाँ पे नेगेटिव था यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, आप देखिए। ठीक है, और उसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग ने लिया है, हाँ इस स्टेप पे यहाँ पे भी फिर से हम लोग ने ब्रेक किया है कि यहाँ पे साइन पॉजिटिव माइनस था, यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस हो गया। ठीक है, तो इस तरह से साइन हर जगह चेंज किया है हमने। अब इसके बाद यहाँ से भी यहाँ पे ब्रेक किया है तो यहाँ पे साइन चेंज किया है। देखो ये 4 में प्लस है इनसाइड में, यहाँ बाहर आ गया तो माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस हो गया। तो ये चीज़ बहुत इन मैटर करता है कि ध्यान रखना है कि साइन जो है आपको ज़रूर चेंज हो। ठीक है, तो इस तरह से बाकी सब आप अपने से सॉल्व करिए, एंड इफ़ यू फाइंड एनी डाउट्स यू कैन आस्क। थैंक यू, हैव ए गुड टाइम, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।